पांच हो गए सर, पांच हो गए सर। हाँ सर प्लीज करो, नहीं तो बाद में आगे खिंच जाता है सर। हाँ, ओके। Very good evening. I welcome all of you once again. Today's webinar on reverse charge mechanism and issues in e-way bill. And on this subject, we have our learned speaker Sri Manoj Kumar Goyal ji with us. Manoj Kumar Goyal ji is a fellow member of our Institute of Chartered Accountants of India. He is a professional with post-qualification experience of more than 2 decades across multifarious industries spectrum. Manoj ji is currently working as a senior partner with RHMS and Company, Chartered Accountant. He is an excellent communicator with demonstrated capabilities in negotiating with various authorities, professionals, and clients for securing favorable judgments, deals, sanctions, and exemptions. Manoj ji is a skilled trainer and speaker with an aptitude of attracting the audience for hours. He has been a regular visiting faculty with various organizations such as Office of the CAG of India, different branches and study circle of the ICI, and after serving various reputed Indian and multinational organizations, he has now completely devoted himself into the field of GST. Manoj ji has also authored handful of articles and books on different topics. Manoj ji has authored different books on GST in the series called GST Unlocked. He is an approved faculty on GST listed by Indirect Tax Committee of the ICI. He is also accredited trainer on GST by NACIN, National Academy of Customs, Indirect Tax and Narcotics. He has served as convener of Trans-Indian CP Study Circle of CIRC of ICI. This is the brief introduction about our today's speaker. With this, I once again welcome our speaker Manoj Goyal ji, and over to Manoj ji. Thank you, Rajesh sir. Thank you very much for the generous introduction as always. And now it feels like at home whenever I come to this study circle. It's like more or less I am now acquainted with all the participants here. So it gives me immense pleasure interacting with such learned members. And it is always a pleasure whenever I get an invite from you. I am not only delighted, but I'm hopeful that in many ways this will be enriching and knowledge enhancing experience for me also. So with this, we will start the technical discussion for today's topic. सर राजेश जी, एक तो ना आपने टॉपिक जो है वो बड़ा लंबा कर दिया है. ये दो चीजें मुझे लगता है थोड़ा सा हम इसको कम जस्टिफाई कर पाएंगे सर. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और ई-वे बिल, ये दोनों ही अपने आप में थोड़े लंबे टॉपिक्स हैं, पर हम कोशिश करेंगे. आरसीएम ले लीजिए सर, आरसीएम ले लो फिर आप. हाँ, मैं वही करने वाला हूं सर कि आरसीएम हम पूरा शिद्दत के साथ करेंगे और अगर टाइम परमिट करेगा तो आगे ई-वे बिल कर लेंगे, नहीं तो ई-वे बिल के लिए फिर आप किसी दिन मौका दीजिएगा. ठीक है बॉस, ठीक है, डन डन. तो चलिए सर शुरुआत करते हैं. मैंने सबसे पहले स्लाइड में रखा है इंडेक्स ऑफ टुडेज डिस्कशन. जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस जिनको हम आज टच करेंगे उसके बारे में मैंने ब्रीफ लिखा है कि ये जो टैक्स पेमेंट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या होता है, आरसीएम और एफसीएम इसमें क्या फर्क है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या है, आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी लॉ में कहां से आती है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 से आती है. आरसीएम की एक और एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में भी है, जो अपने आप में डे 1 से बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट रहा है. बहुत बार टाइम एंड अगेन इसके ऊपर चर्चा हुई है डे 1 से. आई थिंक और कोई सेक्शन हमारे मेंबर्स को याद हो ना हो, कुछ गिनती के सेक्शंस में से एक आता है 9(4). वो लगभग सभी को, क्योंकि शुरू से ही बड़ा कंट्रोवर्शियल सेक्शन था ये, तो लगभग सभी को ये मेरे ख्याल से याद होगा. फिर लिस्ट ऑफ सर्विसेज है कि आरसीएम कौन कौन सी सर्विसेज पे लगता है. इसके वेरियस नोटिफिकेशंस हैं जो सेक्शन 9(3) से गवर्न होते हैं. और सिमिलरली सर्विसेज के अलावा कुछ गुड्स भी ऐसी हैं जिन पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है. मैं स्पेसिफिकली थोड़ा सा ध्यान अट्रैक्ट करूंगा इस पॉइंट पे, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हमारे जो रेगुलरली जीएसटी प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो शायद अभी भी कम जानते हैं इस बारे में कि आरसीएम अंडर सेक्शन 9(3) इज नॉट ओनली एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज बट ऑन सर्टेन गुड्स ऑल्सो. उसके बाद में हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट्स आरसीएम के केस में डिफरेंट होती हैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से.
तो हम टच करेंगे सेक्शन 22 और 24 को। इन दोनों के बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है 23, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सेक्शन 22, 23 और 24 है। फिर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर आरसीएम, इनवॉइसिंग कैसे होती है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आरसीएम का कैसे मिलता है। ये सारे पॉइंट्स आज के लिए हमने रखे हैं, और as the time permits we will then take up the next subject which is e-way bill also। तो जो आज की प्रेजेंटेशन है इसमें मैंने दोनों सब्जेक्ट्स को मर्ज कर दिया है। थोड़ी सी बड़ी प्रेजेंटेशन है, लेकिन ये मैं सब आपके साथ शेयर कर लूंगा। इनफैक्ट लास्ट वाली जो हमारी सेमिनार थी उसकी भी मैं पीपीटी अभी तक शेयर नहीं कर पाया था, तो आज मैं दोनों भेज दूंगा, और इसमें ई-वे बिल का भी पूरा कंटेंट है। सो टू बिगिन विद हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। आई थिंक मोर लेस एवरी मेंबर इज वेल अवेयर कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना है कि चार्जिंग सेक्शन जो है वो जीएसटी एक्ट में, अगर सीजीएसटी की बात करें तो सेक्शन 9 है, और अगर आईजीएसटी एक्ट की बात करें तो सेक्शन 5 है। तो चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि किन सर्कमस्टेंसेस में टैक्स लगेगा, और नॉर्मल केस में जो टैक्स लगेगा उसको कलेक्ट करने की और जमा करने की जिम्मेवारी जो भी सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज होता है उसके पास रहती है, व्हिच इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये एक टर्म ऐसी है जिसको टेक्निकली कहीं बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बट जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आरसीएम एंड एफसीएम हमने इस बात को यहाँ लिखा है कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है। जब सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में आपको कोई भी टैक्स चार्ज करके कलेक्ट करके जमा कराने की एज ए सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, व्हिच इज अ लेसर नोन टर्म। ज्यादातर लोग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म नाम के वर्ड को यूज नहीं करते हैं। आरसीएम इज मोर पॉपुलर, और ये पॉपुलैरिटी जीएसटी एक्ट से नहीं आई है, ये पॉपुलैरिटी सर्विस टैक्स एक्ट के टाइम से ही है। तो आरसीएम क्या होता है, इसको जीएसटी एक्ट में डिफाइन किया है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में, और अर्स्टवाइल सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, जिसको कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो बहुत ही माइल्ड हो गई है वो सेक्शन, लेकिन जब ओरिजिनली जुलाई 2017 में आई थी तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी अपने आप में एक सेक्शन, कंट्रोवर्शियल सेक्शन थी पूरी तरह से। हम लोगों को जो मेनली आज के टॉपिक के लिए समझना है वो आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर बात करनी है, जो कि 2 सेक्शन से गवर्न होता है, 9(3) और 9(4) में। यहाँ चेंज क्या होता है, सिर्फ इतना ही चेंज होता है कि लायबिलिटी टू कलेक्ट एंड पे जो नॉर्मली सप्लायर की होती है वो इस केस में रेसिपिएंट के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, और मोर इम्पोर्टेंटली एक्ट के सारे प्रोविजंस जैसे कि नॉर्मल केस में सप्लायर के ऊपर लगते हैं, वो सारे के सारे रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी वाले केसेस में रेसिपिएंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम सेक्शंस के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो इस स्लाइड पे हमने सेक्शन 9(3) और 5(3) जो कि रेप्लिका सेक्शंस हैं, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 9(3) सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है और उसका बिल्कुल मिररिंग सेक्शन है 5(3) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। ये क्या कहता है, द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the services supply of goods or services or both। तो सिंपल वर्ड्स में 9(3) क्या है, एक स्पेसिफिक सेक्शन है जहां पे गवर्नमेंट के पास पावर है ऐसे केसेस को नोटिफाई करने की जहां सप्लायर के बजाय रेसिपिएंट की लायबिलिटी होगी टैक्स को जमा करने की। इंपॉर्टेंट है इसका सेकंड क्लॉज जो कहता है all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both। तो जहां भी आरसीएम की सप्लाई, जो नोटिफाइड आरसीएम की सप्लाई आ गई, उस केस में जो रेसिपिएंट है वो बिल्कुल सप्लायर के शूज में चला जाता है और एग्जैक्टली उसके ऊपर सारे एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं जो नॉर्मल केस में एक सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। Details of goods and services on which RCM is applicable are described in the upcoming slides। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा कि 9(3) या 5(3) गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं
उन सर्विसेज की कैटेगरी या गुड्स की कैटेगरी को नोटिफाई करने के लिए जिसमें आप आरसीएम चार्ज करोगे, यानी कि रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस या रेसिपिएंट ऑफ गुड्स की लायबिलिटी होगी एप्लीकेबल जीएसटी को डायरेक्टली जमा कराने की, और उसके ऊपर एक्ट के सारे प्रोविजंस शिफ्ट हो जाएंगे सप्लायर के बजाय। तो अब हम सेक्शन 9(4) या 5(4) पुराने वाला जो थियोरेटिकल है, आज की डेट में इसका कोई बहुत बड़ा रेलेवेंस नहीं है। हम सेक्शन 9(4) या 5(4) को बहुत क्विकली देखेंगे। जब ये सेक्शन ओरिजिनली आया था तो इसका स्कोप बहुत वास्ट था। इसमें ये कहा गया था कि एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, द सप्लाई विल बी चार्जेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये क्या कहते हैं, टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ to the supplier who is not registered to a registered person shall be on the person on reverse charge basis by the recipient, shall be paid by the person on reverse charge basis by the recipient। तो ये सेक्शन अब बहुत ज्यादा डिटेल में हमें अभी इस फॉर्म में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी सिर्फ 3 महीने के गैप के बाद में ही 9(4) को बहुत ज्यादा माइल्ड कर दिया गया था। ऑलमोस्ट 2 साल के पीरियड के लिए 9(4) की इफेक्टिवनेस 0 हो गई थी, और फाइनली 1 फरवरी 2019 से ये अब नए फॉर्म में एप्लीकेबल हुई है। दोबारा अब इसकी एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लागू होती है। तो हम 9(4) के बारे में जो पुरानी सेक्शन है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसलिए सिर्फ ये रेफरेंस के लिए है कि 13 अक्टूबर 2017 के बाद पुराना सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो कि बहुत ही वाइड सेक्शन था उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो जो नया अमेंडेड सेक्शन है जो 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल है वो क्या है उसको जरा पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस हु शैल in respect of supply of specified categories of goods or services or received from an unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both। तो इन्होंने माइल्ड कर दिया कि अभी डायरेक्टली अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन जो भी सामान खरीदता है या सर्विसेज लेता है उस पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज के लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी 9(4) में नोटिफाई होगी जहां पे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी गई गुड्स या सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगेगा। तो आज की डेट में जो ये नोटिफिकेशन है 9(4) में या 5(4) में बड़ा लिमिटेड है, इसका स्कोप बहुत ही कम है कंपैरेटिवली। तो हम आज के डिस्कशन में फोकस करेंगे अमेंडेड 9(4) के ऊपर, ना कि पुराने 9(4) के ऊपर। तो ये मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है कि 1 जुलाई से लेके 12 अक्टूबर तक आरसीएम जो है वो उन सभी सप्लाईज पे लगता था जिनमें टोटल वैल्यू एक दिन में सारे सप्लायर्स की मिला के अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो उसके ऊपर आपको मैंडेटरीली रिवर्स चार्ज जमा कराना जरूरी था। ये डे 1 यानी कि 1 जुलाई 2017 से लेके 12 अक्टूबर 2017 तक ऑलमोस्ट 3 महीने तक एप्लीकेबल था। 13 अक्टूबर से लेके और 31 जनवरी 2019 तक 9(4) और 5(4) को सुला दिया गया था। ये बहुत ही गहरी नींद में थे 9(4) और 5(4), मतलब कि इस पीरियड में 13 अक्टूबर 2017 से लेके और 31 जनवरी 2019 तक के बीच में इफेक्टिवली 9(4) और 5(4) की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। हालांकि ये सेक्शन एग्जिस्ट करते थे बट इनके थ्रू टैक्सेबिलिटी को डेफर कर दिया गया था, जिसको फाइनली अमेंडेड सेक्शन 9(4) के थ्रू दोबारा लेकिन बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में इंप्लीमेंट किया गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि 9(3) या 5(3) में जो टोटल सर्विसेज हैं, और यही हमारा आज का जो क्रक्स है, जो मेन हमारे कंटेंट है आज के, वो 9(3) और 5(3) पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि 9(4) या 5(4) में उतना ज्यादा लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं है, हम उसको भी देखेंगे, बट मेन फोकस एरिया जो है हमारा 9(3) और 5(3) ही है। इसमें बहुत काफी सारी सर्विसेज हैं, काफी सारे गुड्स भी फॉल करते हैं और इनमें से काफी क्रिटिकल इश्यूज एमर्ज होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर टाइम लगाना। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर आरसीएम लगता है। तो जो
कैटेगरी नंबर 1 है सेक्शन 9(4) का नोटिफिकेशन जिसके थ्रू रिवर्स चार्ज आता है, उसकी सबसे पहली एंट्री इन केस ऑफ 9(4) होती है जीटीए, यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जीटीए की सर्विसेज अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेबिलिटी। शुरू से लेके एंड तक इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो पुरानी हिस्ट्री और चेंजेस पे ना जाते हुए हम आज के स्टेटस पे फोकस करेंगे कि जो जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। तो रिवर्स चार्ज पे आने से पहले थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नॉर्मल केस में जीटीए की टैक्सेबिलिटी कैसे है, यानी कि उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या लगता है। तो क्योंकि जीटीए की सप्लाईज एक ऐसी सप्लाई है जो ऑलमोस्ट हर क्लाइंट के केस में कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है, एज अ सप्लायर या रेसिपिएंट ये एक ऐसी कैटेगरी है जो मैक्सिमम केसेस में अप्लाई होती है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं जीटीए की टैक्सेबिलिटी के 2 रेट्स होते हैं। एक 5% होता है, मतलब 2.5% सीजीएसटी 2.5% एसजीएसटी, और एक 12% होता है, मतलब 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। ये डिफरेंस क्या है? 5% का जीएसटी उस केस में लगता है जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जीटीए को नहीं मिलता। जीटीए हैज एन ऑप्शन टू ऑप्ट कि अगर वो चाहे तो 5% जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज पे विदाउट टैक्स लगा सकता है, विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट लगा सकता है, और या वो चाहे कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना है तो वो 12% की टैक्स चार्ज कर सकता है, और पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा? जो उसने गाड़ी खरीदी है, उसके टायर्स खरीदे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस है, जितनी भी इनवर्ड सर्विसेज हैं, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका बेनिफिट अगर लेना चाहता है तो आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स रेट जो है वो 12% का हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि क्या सारे ही केस में रेसिपिएंट जिम्मेवार है इनवर्ड सप्लाई के लिए टैक्स देने के लिए, मतलब आरसीएम में ही टैक्स लगता है, या कोई ऐसे सिचुएशंस भी हैं जहां जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स चार्ज करना पड़ सकता है। ये बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किस सिचुएशन में जीटीए की सप्लाईज पे रिवर्स चार्ज लगेगा और किस सिचुएशन में जीटीए की सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं who has not paid central tax at the rate of 6% in respect of transportation of goods by road। तो जीटीए ने अगर कोई ऐसी सप्लाई करी है जिसपे वो 12% का टैक्स चार्ज नहीं कर रहा है, अगर कोई ऐसा जीटीए है जो फॉरवर्ड चार्ज में 12% टैक्स लगा के आपको बिल करता है, तो ये रिवर्स चार्ज में फॉल नहीं करेगा। रिवर्स चार्ज में फॉल करने के लिए 12% वाली टैक्स एप्लीकेबिलिटी वाला जीटीए एंटाइटल्ड नहीं है, वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स लगाएगा। Provided that nothing contained in this entry shall apply to services provided by a goods transport agency by way of transport of goods in a goods carriage by road to। अब ये exceptions आ गए। सबसे पहले तो ये है कि रिवर्स चार्ज जीटीए का सिर्फ तभी लगता है जब जीटीए या जो आपकी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर रही है, अपने इनवॉइस पे लिख के उसको बिल करती है कि ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा और इस पे एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स 5% है, यानी 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। उसी केस में ये आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आती है। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने की है कि आरसीएम अगर पे होगा तो 5% पे होगा, अदरवाइज आरसीएम पे नहीं होगा। 12% वाला अगर जीटीए का बिल आपके पास आता है तो उसको आप जीटीए को ही फुल पेमेंट कर दीजिए, 100 रुपीज प्लस 12 रुपीज जीएसटी, 112 रुपए आप जीटीए को पेमेंट कर देंगे, आपकी लायबिलिटी खत्म। लेकिन अगर जीटीए का बिल 100 रुपीज प्लस 5 रुपीज के हिसाब से आता है, या कई केसेस में 100 रुपीज के हिसाब से आता है और उसमें लिख दिया जाता है कि ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, उस केस में आपको 5% में आरसीएम उसका जमा कराना है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आरसीएम नहीं लगता। आरसीएम कहाँ नहीं लगता? अगर सप्लाई जो है वो एक डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की हो। अगर सर्विसेज लेने वाला कोई ऐसा डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का डिपार्टमेंट है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा।
किसी लोकल अथॉरिटी को जब सप्लाई होती है जीटीए की तो भी नहीं लगेगा, अगर कोई गवर्नमेंटल एजेंसी को होती है तो भी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड कि इन लोगों ने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक लोकल अथॉरिटी के पास किसी और रीजन से नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो, अगर उनके पास नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है तो उनको भी जीटीए के रिवर्स चार्ज में वो लोग फॉल कर जाएंगे। बट ज्यादातर केसेस में ये जो डिपार्टमेंट ऊपर लिखे हुए हैं ये रजिस्ट्रेशन या तो लेते ही नहीं है, और अगर लेते हैं तो ये सिर्फ सेक्शन 51 में टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी पूरा करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो सेक्शन 51 का जो रजिस्टर्ड पर्सन है इन केसेस में उसको रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। Further, the person who pays or is liable to pay freight for the transportation of goods by road in goods carriage located in the taxable territory shall be treated as the person who receives the services. तो important ये है कि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जीटीए की सर्विसेज अवेल करने में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कंसाइनर होता है, कंसाइनी होता है। तो बहुत बार ये कंफ्यूजन आता है कि जीटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवर्स चार्ज की किसकी है। तो आंसर यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि जो आदमी पेमेंट करने के लिए लायबल है वही प्राइमरीली रेसिपिएंट होगा, और जो प्राइमरीली रेसिपिएंट है उसी को रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी आएगी। फिर जीटीए की डेफिनेशन दी हुई कि क्या होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मींस एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यूज कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो दो चीजें इसमें मैंडेटरी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, तो जो भी जीटीए की सर्विस दे रहा है वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाय वे ऑफ रोड, और दूसरी बात वो एक कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, ये मैंडेटरी कंडीशन होती है टू क्वालिफाई एज जीटीए। अगर वो जीटीए है तो उसके पास दो ऑप्शन है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगा सकता है 12% विद इनपुट, फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स लगा सकता है 5% विदाउट इनपुट, और सर्टेन केसेस में रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी मस्ट होती है, और रिवर्स चार्ज सिर्फ 5% कैटेगरी का ही हो सकता है, 12% कैटेगरी का रिवर्स चार्ज नहीं हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जीटीए सर्विसेज का है वो इस चार्ट में डेमोन्स्ट्रेट करने की हमने कोशिश की है। सारे केसेस में सभी रेसिपिएंट्स के ऊपर जीटीए की रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होती है, स्पेसिफिकली सिर्फ इन लोगों के ऊपर ही जीटीए एप्लीकेबल होती है। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन लोग हैं जिन पे जीटीए का रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले हम देखें कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, तो उस केस में आपको रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी होती है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो इररिस्पेक्टिव कि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इररिस्पेक्टिव कि आप किसी और एक्ट में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, अगर आप जीएसटी का कोई भी जीटीए की सर्विस लेते हो तो रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। पहली बात, आप कंपनी हो तो हो जाएगी, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो भी हो जाएगी, अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो तब भी हो जाएगी, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तब भी हो जाएगी, अगर आप फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड हो तब भी हो जाएगी, अगर आप रजिस्टर्ड सोसाइटी हो तब भी हो जाएगी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो रजिस्टर्ड तब भी हो जाएगी, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो तब भी हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, एओपी, कैजुअल टैक्सेबल, रजिस्टर्ड फैक्ट्री ये सब आ गए तो फिर बचा कौन? सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बचा वो है इंडिविजुअल प्रोप्राइटर। अगर एक एंटिटी प्रोप्राइटरशिप है तो वो इनमें से किसी भी जगह पे फॉल नहीं करती अनलेस वो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। अगर एक प्रोप्राइटर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो इस क्लॉज में फॉल कर जाता है, उस केस में रिवर्स चार्ज उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ऊपर ये रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी उस केस में नहीं आती है। तो ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पे रेसिपिएंट्स को भी क्लासिफाई किया गया कि कौन कौन रेसिपिएंट हो सकते हैं। तो पहली बात हमने देखी कि जीटीए के पास ये ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में बिलिंग करेगा या रिवर्स चार्ज में बिलिंग करेगा। दूसरी बात ये कि अगर वो रिवर्स चार्ज में बिलिंग करेगा तो ये जरूरी है कि जो रेसिपिएंट है वो इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करना चाहिए। अगर इनमें से फॉल नहीं करता है किसी भी कैटेगरी में तो उस पर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक जीटीए हूं, मैंने ऑप्शन लिया है कि मैं 5% पे फॉरवर्ड चार्ज में बिलिंग करूंगा
सॉरी 5% में बिलिंग करूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लूंगा। उस केस में क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जीटीए को खुद ही टैक्स जमा कराना पड़े एज अ सप्लायर? मतलब रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी 100% केसेस में हो ये जरूरी नहीं है। अगर एक जीटीए ने 5% वाला ऑप्शन अडॉप्ट किया है तो भी ऐसा हो सकता है कि उसको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगाना पड़ जाए और उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाए। क्योंकि अगर मैं जीटीए हूं और मैं 100% सर्विसेज रिवर्स चार्ज वाली देता हूं तो टेक्निकली मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात हम रजिस्ट्रेशन में आएंगे तब डिस्कस करेंगे कि एक सप्लायर जो 100% रिवर्स चार्ज की सप्लाईज देता है उसको मैंडेटरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जीटीए हूं, मैंने 5% का टैक्स ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया तो अब मैं चुपचाप सो गया कि किसी को भी सर्विस दूं मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, रिवर्स चार्ज में ही सामने वाले को टैक्स जमा कराना है। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ केसेस ऐसे भी आ सकते हैं जहां पे सप्लायर जीटीए है और उसको फॉरवर्ड चार्ज में भी 5% का टैक्स अप्लाई करना पड़ सकता है। चलिए फर्दर चलते हैं। अभी हम जीटीए पर ही हैं, जो पहली सर्विस है उसी पे ही हैं। तो उसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं कि जीटीए की सर्विसेज रिवर्स चार्ज में फॉल करती हैं, कुछ केस में फॉरवर्ड चार्ज भी हो सकता है। बट इन दोनों के अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है जहां पे जीटीए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। तो ये एग्जेम्पशन हम यहाँ पे डील करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 12 जो एग्जेम्पशंस का मेन नोटिफिकेशन, जो पेरेंट नोटिफिकेशन है, जो 28 जून 2017 को आया था, उसी में जीटीए से रिलेटेड कुछ सप्लाईज को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो सबसे पहले सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप कैरी कर रहे हो तो उसमें जीटीए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। दूसरा, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज, 1500 रुपए से ज्यादा की अगर वैल्यू नहीं है तो कोई भी आइटम अगर आप लेके जा रहे हैं तो भी वो जीटीए की एग्जेम्प्टेड है। उसमें ना रिवर्स चार्ज लगता है ना फॉरवर्ड चार्ज लगता है। अगर आपके टोटल कंसाइनमेंट में की वैल्यू 1500 रुपए से कम है तो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों ही एग्जेम्प्ट है। तीसरी सिचुएशन है गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स इन अ सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750 रुपए। तो मान लीजिए कि एक ट्रक में 5 लोगों का माल जा रहा है, लेकिन पांचों लोगों का इंडिविजुअल माल जो है वो उसकी चार्जेस, उसका जीटीए ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो 750 रुपए से कम का है, तो उस केस में भी ये एग्जेम्पशन बनी हुई है। तो पहला हो गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके जाएंगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर पूरे ट्रक में जो माल है उसका सिंगल नोट बना हुआ है और वो 1500 रुपए से कम की वैल्यू का है तो कोई टैक्स नहीं है, फॉरवर्ड रिवर्स को भूल जाइए। अगर बहुत सारे मल्टीपल कंसाइनमेंट्स हैं लेकिन इंडिविजुअल कंसाइनमेंट की वैल्यू 750 रुपए से कम है तो भी ये भूल जाइए कि आपको रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज कुछ भी लगेगा। ये एग्जेम्पशन की कैटेगरीज हैं। आगे चलते हैं। Goods Transport Agency providing services by way of transport in goods carriage of milk, salt and food grain including flour, pulses and rice. तो ये सामान भी अगर आप लेके जाते हैं तो इसके लिए भी एग्जेम्पशन है। Further, services provided by a GTA by way of transport in a goods carriage of organic manure या फिर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो ये सारे एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन मतलब ना वो फॉरवर्ड चार्ज में फॉल करेंगे और ना ही रिवर्स चार्ज में फॉल करेंगे। फर्दर चलते हैं। फिर सर्विसेज प्रोवाइड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरेज ऑफ रिलीफ मटेरियल। अगर कोई रिलीफ मटेरियल लेके जा रहे हैं आप जो कि स्पेसिफिकली डिजास्टर्स के लिए, कैलामिटीज के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए, मिसहैप्स के केस में होता है तो आपका वो भी एग्जेम्प्ट होगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। जब ये भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके ऊपर भी कोई जीटीए की सर्विसेज का टैक्स नहीं लगता, ये एग्जेम्प्टेड सर्विसेज होती हैं। अब उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू हुम, किन किन लोगों के केस में यहाँ पे जो हमने चार्ट दिया हुआ है वो ऐसा है जहां पे रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है। पहला, अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कोई ऐसा है जिसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रखा है तो कोई जरूरत नहीं है, उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। अगर एक अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है नहीं होगा।
हायरिंग ऑफ सर्विसेज टू अनदर जीटीए, एक जीटीए ने दूसरे जीटीए को हायरिंग सर्विसेज दे दी, नहीं होगा। गवर्नमेंट एजेंसीज जिन्होंने सिर्फ टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, नहीं होगा। लोकल अथॉरिटी जिन्होंने सिर्फ टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, नहीं होगा। डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन ओनली अंडर टीडीएस, नहीं होगा। तो ये सारे वो सिचुएशंस हैं जहां पे रिवर्स चार्ज में टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। फर्दर चलते हैं, अभी भी हम जीटीए पर ही हैं क्योंकि इसमें कुछ और भी क्रूशियल पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट ये कि सम ऑफ द केसेस इन व्हिच टैक्स शैल बी पेड बाय जीटीए अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसकी अभी हमने बात कर ली, उसी को यहां समराइज किया है। पहली बात क्या है कि अगर एक रजिस्टर्ड सप्लायर 12% की रेट से टैक्स चार्ज करता है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स लगेगा। Second है, if the supplier of goods is charging freight amount from the recipient of goods in the same invoice in which issued for supply of goods। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं गुड्स का सप्लायर हूं और मैंने ही अपना ट्रक भेज के माल डिलीवर करा दिया और उसके चार्जेस को भी मैंने अपने मेन इनवॉइस में ही एम्बेडेड करके चार्ज कर लिया, तो उस केस में सेपरेटली जीटीए सर्विस नहीं होती है, हम उसको कंपोजिट सप्लाई ऑफ द मेन प्रिंसिपल आइटम में ही ट्रीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसको कंपोजिट सप्लाई मान के जो मेन प्रोडक्ट का रेट है वही रेट उस पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो फॉरवर्ड चार्ज के या रिवर्स चार्ज के केस में ये कहीं फॉल नहीं करेगा। ये जीटीए का, अगर मैं खुद ही जीटीए सर्विस दे रहा हूं, मैं ही सप्लायर हूं, तो और एक ही इनवॉइस में अमाउंट ऐड कर देता हूं, तो उस केस में जो प्रिंसिपल कमोडिटी मैंने सेल करी है उसी का रेट मेरी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, जो अक्सर क्वेश्चन आता है और किसी के पास भी इसका कोई फुल प्रूफ आंसर नहीं होता। मैं भी कोई गारंटी नहीं कर रहा कि जो मैंने वर्कआउट किया है वो आंसर बिल्कुल ठीक है, हो सकता है दिस इज फर्दर सब्जेक्ट टू डेलिब्रेशन। तो तीसरा वाला जो पॉइंट है उस पे जरा एक बार ध्यान से अंडरस्टैंड करते हैं कि सिचुएशन क्या है। ये वो सिचुएशन है जहां पे मैं खुद सप्लायर हूं और मैंने ही जीटीए की सर्विस भी दी है, मैंने गुड्स बेचे, उसके साथ साथ माल की डिलीवरी भी मैं अपने ही ट्रक से या अपने ही किसी भी ट्रांसपोर्ट कैरेज से कर रहा हूं, लेकिन मैं उसके चार्जेस अलग से बिल करता हूं। मान लीजिए मैंने किसी को 5 लाख रुपए का एक कंसाइनमेंट बेचा और उसको डिलीवरी करने के लिए 50,000 रुपए अलग से चार्ज किए। एक तरीका जो सेकंड हमारी प्रेजेंटेशन के सेकंड पोर्शन में है, वहां हमने कहा कि बिल ही 5.5 लाख रुपए का इशू हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेन पेरेंट आइटम के ऊपर रेट ऑफ टैक्स लगा हुआ था वही 5.5 लाख पे लग जाएगा और स्टोरी खत्म। यहां हम कह रहे हैं कि हमने अलग से एक इनवॉइस रेज किया, 5 लाख रुपए का इनवॉइस अलग रेज किया और 50,000 रुपए का इनवॉइस अलग रेज किया, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी? यहां हम एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन को रेफर कर रहे हैं जो ये कहता है कि अगर मैंने अलग से इनवॉइस रेज किया है तो क्या होगा, स्पेसिफिक एंट्री जो है वो आपको एग्जेम्प्ट कर सकती है, क्योंकि एक एंट्री एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में ऐसी है जो कहती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय अ जीटीए। तो अगर मान लीजिए मैं जीटीए नहीं हूं क्योंकि मैं तो खुद ही माल डिलीवर कर रहा हूं, तो कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता। हमने देखा कि जीटीए की डेफिनेशन क्लियरली कहती है कि जीटीए होने के लिए आपको एक कंसाइनमेंट नोट इशू करना जरूरी है, बट क्योंकि मैं ही गुड्स का ऑनर हूं और मैं ही उनको डिलीवर करने के लिए जा रहा हूं डायरेक्टली, तो मैं कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता। टेक्निकली आई डोंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ जीटीए, मेरा बिजनेस तो गुड सप्लाई करने का है। तो उस कंडीशन में हम इस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं और मेरे ख्याल से ये एग्जेम्प्टेड ट्रांसपोर्टेशन में आएगी, इस पे जीटीए वाली सर्विस के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही जीटीए की डिस्कशन से हम लोग बाहर आ गए हैं। अगली एंट्री जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में है वो है लीगल सर्विसेज। ये भी वो सर्विसेज हैं जो ऑलमोस्ट हर छोटा बड़ा क्लाइंट यूज करता है। पहला जीटीए और दूसरी लीगल सर्विसेज, ये दो ऐसी सर्विसेज हैं जो ऑलमोस्ट हर क्लाइंट के यहाँ हमें मिल जाएंगी, इसीलिए हम इनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके टाइम के लगा के डिस्कस कर रहे हैं। तो लीगल सर्विसेज में क्या होती है, एवरी इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स, चाहे कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है या सीनियर एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट्स हैं,
कि जब किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कौन सी सर्विसेज? बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? बहुत बार ऐसा होता है कि एक सीनियर एडवोकेट, सॉरी, एक नॉर्मल एडवोकेट किसी सीनियर एडवोकेट को हायर कर लेता है और कोर्ट में जो रिप्रेजेंटेशन होती है, कोर्ट में जो काम होता है वो सीनियर एडवोकेट करता है, लेकिन बैक एंड पे एक जूनियर एडवोकेट भी उसके लिए काम कर रहा होता है। तो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी लीगल सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को दी है, चाहे आप इंडिविजुअल एडवोकेट हो या आप सीनियर एडवोकेट हो या कोई फर्म ऑफ एडवोकेट्स हो, तीनों ही सिचुएशंस में अगर आप लीगल सर्विसेज दे रहे हो किसी बिजनेस एंटिटी को, जो अंडरलाइंग रिमार्क्स है इसमें वो बिजनेस एंटिटी है, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंटिटी के केस में ही लागू होता है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे जीटीए के साथ तो सिचुएशन बहुत अलग है। जीटीए में रेसिपिएंट का बिजनेस एंटिटी होना या ना होना कहीं डिफाइंड नहीं है। वहां लिखा हुआ है कि कौन कौन आदमी रिवर्स चार्ज के लिए लायबल होंगे। वहां कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, कोई नॉर्मल सोसाइटी भी हो सकती है, कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन जो अदरवाइज बिजनेस नहीं कर रहा है वो भी हो सकता है। बट यहाँ पे अंडरलाइंग फैक्टर है कि बिजनेस एंटिटी को ही रिवर्स चार्ज पे करना है। लीगल सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है? कोई एडवाइस दे दी, कंसल्टेंसी दे दी और असिस्टेंस दे दी इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। तो इसका मतलब है कि आपको एडवाइस दीजिए, कोई भी रिप्रेजेंटेशन दीजिए, किसी भी टाइप की कंसल्टेंसी दीजिए या फिर कोई रिप्रेजेंटेशनल सर्विस दीजिए, सारी की सारी रिवर्स चार्ज में फॉल कर जाएंगी, प्रोवाइडेड कि रेसिपिएंट ऑफ सर्विस जो है वो एक बिजनेस एंटिटी होना चाहिए। However, an exemption has been given under notification number 12/2017। अगेन ये सर्विसेज एग्जाम्पशन क्या है कि अगर इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट ने एक ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी हैं जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर उस लेवल से नीचे है जहां उनको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो। इसका मतलब समझते हैं। पहली बात तो बिजनेस एंटिटी के ऊपर ही आरसीएम एप्लीकेबल होता है लीगल एंटिटी का, नॉन बिजनेस एंटिटी पे होता ही नहीं है। अब मान लीजिए एक बिजनेस एंटिटी है लेकिन उसकी जो टर्नओवर है वो टैक्सेबल लिमिट से नीचे है। एग्जांपल ले लेते हैं कि दिल्ली में मान लीजिए एक कोई ड्राई क्लीनिंग एजेंसी है जो एक ड्राई क्लीनर की शॉप चलाता है और साल में उसकी 12-15 लाख रुपए की सप्लाईज हैं टोटल। तो टेक्निकली उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए उसको किसी आदमी ने 10,000 रुपए का चेक दिया जो बाउंस हो गया और वो एक वकील के पास पहुंच गया कि 138 का नोटिस दे दो आप, और वकील ने 5,000 रुपए की फीस चार्ज कर ली उसपे। तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेके रिवर्स चार्ज पे करना है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी उन्होंने एग्जाम्पशन दे रखी है कि अगर आप टेक्निकली बिजनेस एंटिटी हैं लेकिन आपकी टर्नओवर जो बेसिक थ्रेशोल्ड है उससे नीचे है तो आपको रिवर्स चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि लीगल सर्विसेज एक छोटी सी बिजनेस एंटिटी भी अगर लेगी तो भी वो लायबल हो जाएगी रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराने के लिए। इसलिए ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने छोटी बिजनेस एंटिटीज को रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी से बाहर किया है। अब इसके साथ हमें एक और भी इंपॉर्टेंट चीज समझने को मिलती है कि रिवर्स चार्ज की बाकी एंट्रीज जो हैं उनमें ये एग्जाम्पशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक बिजनेस एंटिटी हूं और मैं जो भी कैटेगरीज यहां हमने पहले देखी हैं ये वाली, इनमें से कहीं फॉल करता हूं और मैंने एक जीटीए से सर्विस ले ली 5,000 रुपए की, तो चाहे मैं 20 लाख की टर्नओवर करता हूं या मैं 2 लाख की टर्नओवर करता हूं, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। फिर मुझे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा और रिवर्स चार्ज जमा कराना ही पड़ेगा। तो लाइकवाइज जो बाकी की सर्विसेज हैं उनमें भी ये स्पेसिफिक एग्जाम्पशन नहीं है, इसलिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट है वो लीगल सर्विसेज के केस में ही मिलता है, बाकी सर्विसेज के केस में नहीं मिलता। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, लीगल सर्विसेज इफ प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म और एडवोकेट्स a partnership firm of advocates or an individual as an advocate other than a senior advocate to another advocate or partnership firm of advocates, any other person other than a business entity, the central government, state government, union territory, local authority, governmental authority or any government entity
इन दैट केस ये स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में आ जाता है। तो दो तरीके की एग्जेम्पशन हमने डिस्कस कर ली हैं। यहाँ जो बिजनेस एंटिटी एक लेवल से नीचे है, जिसका टैक्स टर्नओवर 20 लाख रुपए टेक्निकली हम कह सकते हैं से नीचे है टोटल टर्नओवर, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेके रिवर्स चार्ज जमा कराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा वो सिचुएशन है जहां पे एक फर्म या एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रही है या दूसरी फर्म को सर्विस दे रही है, वो सिचुएशन भी टैक्स नेट से बाहर चली जाती है। तो ये दो सिचुएशंस को स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंडिविजुअल को भी अगर आप सर्विसेज देते हैं तो वो भी रिवर्स चार्ज नेटवर्क में फॉल नहीं करती। तो एक एडवोकेट अगर किसी इंडिविजुअल को कोई लीगल सर्विसेज देता है तो वो भी टैक्स नेटवर्क में रिवर्स चार्ज में फॉल नहीं करती है, वो एग्जेम्प्टेड सर्विस होती है। तीसरी जो कि सिमिलर सर्विस है, लेकिन इसमें हम ज्यादा टाइम हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत लिमिटेड केसेस में एप्लीकेबल होती है। दिस इज अबाउट सर्विसेज टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये ऑलमोस्ट पैरेलल प्रोविजन है जो एडवोकेट्स का होता है। बहुत सारे केसेस में अगर मान लीजिए किसी कंपनी का कोई डिस्प्यूट हो गया और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में आपने उस मैटर के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को डाल दिया है, तो उस सिचुएशन में जो ट्रिब्यूनल होती है वो बिजनेस एंटिटी से पैसा चार्ज करती है। तो ऐसे चार्जेस रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होते हैं। बिजनेस एंटिटी को ही रिवर्स चार्ज में उसका टैक्स पे करना है। तो अगर कोई भी आर्बिट्रेशन का मैटर आपके किसी भी केस में चल रहा है और ऐसी ट्रिब्यूनल को आप कोई पेमेंट करते हैं तो वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होती है। उसकी पेमेंट करने की जिम्मेवारी रेसिपिएंट एंटिटी की होती है, बट अगेन वो एंटिटी हैज टू बी अ बिजनेस एंटिटी ओनली, क्योंकि नीचे स्पेसिफिक एग्जेम्पशन दी हुई है कि अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी को सप्लाई देता है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। A business entity with aggregate turnover up to such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption. Similarly, अगर एक छोटी बिजनेस एंटिटी है, अगर उसको भी किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सर्विसेज दी हैं, तो जो हमने एडवोकेट्स के केस में देखा वो यहाँ भी है कि 15 लाख रुपए की अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको स्पेशली रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। फिर तीसरी सिचुएशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी है या फिर गवर्नमेंट एंटिटी है, उनके केस में भी ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होती है। तो अभी तक हमने तीन सर्विसेज देखी, जीटीए, एडवोकेट्स या लीगल सर्विसेज कह लें, और तीसरा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। मेरे ख्याल से दो सर्विसेज, पहली और दूसरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बड़ी लिमिटेड यूज आता है, लेकिन जहां यूजफुल है वहां ऑफ कोर्स इट आल्सो मैटर्स एंड दैट वे एवरी एंट्री मैटर्स। तो उसके बाद चौथी सर्विस जो आती है वो स्पॉन्सरशिप की सर्विस है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पॉन्सरशिप को जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है आरसीएम की। RCM shall be applicable if any person is providing services of sponsorship to any body corporate or a partnership firm. तो पहला अंडरलाइन हमारा ये है कि बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में से कोई रेसिपिएंट होना चाहिए। अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म में से कोई भी रेसिपिएंट है तो स्पॉन्सर करने वाला कोई भी हो सकता है। जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई कंपनी, किसी भी कैटेगरी का पर्सन हो सकता है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बट रेसिपिएंट या तो बॉडी कॉर्पोरेट होगा और या फिर एक पार्टनरशिप फर्म होगी। तो मीनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप, जैसा हमने डिस्कस किया कि कहीं जीएसटी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमें बोरो करना पड़ा सर्विस टैक्स से, जहां पे ये एक सर्विस स्पेसिफिकली डिफाइंड है। तो यहाँ कहते हैं स्पॉन्सरशिप इंक्लूड्स नेमिंग एन इवेंट आफ्टर द स्पॉन्सर, डिस्प्लेइंग द स्पॉन्सर्स कंपनी लोगो और नेम, giving the sponsor exclusive or priority booking rights, sponsoring prizes or trophies for competitions, which does not include, but it does not include any financial or other support in the form of donations or gifts given by the donors. मैं इस केस में एक छोटा सा एग्जांपल लेके अपनी बात को क्लैरिफाई करता हूं कि क्या चीज स्पॉन्सरशिप हो सकती है और क्या चीज स्पॉन्सरशिप नहीं हो सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए जी टीवी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कहा कि आप, हमारे हॉस्पिटल बहुत बड़ा है
और एक पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर जाता है उसके बाद उसको अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट तक जाने में कई बार बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है, 1.5-2 किलोमीटर तक, अंदर काफी बड़ा कैंपस है वो। तो आप हो सके तो हमें कुछ बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां दे दो और हम इनको अंदर कैंपस में रन करेंगे। आपकी कंपनी का लोगो और बाकी चीजें जो है वो गाड़ी पे आप लगा दीजिए, उससे आपकी एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगी और आप पैसा गाड़ियों का हमें दीजिए, प्लस उसके अलावा जो भी ड्राइवर्स की सैलरी है, जब मेंटेनेंस के पेमेंट्स हैं, वो सब भी आप कीजिए। तो हम आपको ऐसी गाड़ियां विद प्रॉपर नेम एटसेट्रा एवरीथिंग डिस्प्लेड हम आपको अलाउ कर देंगे। तो क्वेश्चन आता है, अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो क्या ये स्पॉन्सरशिप सर्विस है? और सिमिलरली अगर मैंने एक पर्टिकुलर क्रिकेट मैच में अपनी कंपनी का बोर्ड डिस्प्ले करा दिया और जिसको कि लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और उसके बदले में मैंने बीसीसीआई को कुछ पेमेंट दिया, तो क्या ये स्पॉन्सरशिप सर्विस है? मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्रिकेट मैच के दौरान बोर्ड डिस्प्ले कराना, अपनी कंपनी का प्रमोशन करना, या बहुत बार हम देखते हैं क्रिकेट मैच के दौरान बड़ी बड़ी नई गाड़ियां जो लॉन्च होने वाली होती हैं, बड़ी होती हैं, तो ये सब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं। बट जो दूसरी कैटेगरी है जहां जी टीवी ने अपनी गाड़ी को सर्व करने के लिए दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज एम से नहीं ले रही है, ये स्पॉन्सरशिप सर्विस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये डोनेशन की कैटेगरी में ही आएगा। तो उसके अलावा जो भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं, अगर वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दिए जा रहे हैं तो ही वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होते हैं, अदरवाइज वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्सेबल होते हैं। पांचवी एंट्री आती है आरसीएम ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से लोगों को इस एंट्री के बारे में पता ही नहीं है। इसको इसलिए बड़ा ध्यान से देखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इग्नोरेंस में ही सही इस एंट्री को कंप्लाई नहीं करते। जीटीए हुआ, एडवोकेट्स हुआ, या इवन हमने जो इससे पहले की सर्विस देखी है वो भी बहुत सारे लोग कंप्लाई करते हैं स्पॉन्सरशिप वाली, लेकिन आरसीएम की जो गवर्नमेंट की सर्विसेज पे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो इस पे हम थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाएंगे। यहां हम कहते हैं services supplied by the central government, state government, union territory or local authority to a business entity which is located in taxable territory shall be taxable under reverse charge। तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, यूनियन टेरिटरी देती है, लोकल अथॉरिटी भी दे सकती है, टू अ बिजनेस एंटिटी। होना ये बिजनेस एंटिटी को ही चाहिए, और वो भी बिजनेस एंटिटी जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। उस केस में ये सर्विसेज टैक्सेबल हो जाती हैं रिवर्स चार्ज में। लेकिन इसमें कुछ कुछ एग्जेम्पशंस हैं। पहला एग्जेम्पशन क्या है? However, some of the services is provided by government on which RCM will not be levied is renting of immovable property। इस पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा डायरेक्टली। RCM is not applicable on services specified below। अगर कोई पोस्टल सर्विसेज हैं तो नहीं लगेगा। In relation to an aircraft or a vessel inside or outside the precincts of a port or an airport, उस केस में नहीं लगेगा। Transport of goods or passengers, इस केस में अगर ये सारी की सारी सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं तो उनके ऊपर रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। बट अदर देन दैट कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसके ऊपर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी बनती है। All services provided by the central, state, local authority are covered under RCM if not specifically exempt। तो इस एंट्री को हमें बहुत जगह पे बड़ा माइन्यूटली देखना चाहिए। जब भी कोई क्लाइंट किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, किसी गवर्नमेंट को, किसी डिपार्टमेंट को कोई पेमेंट करता है तो हमें डेफिनेटली देखना चाहिए कि वो कहीं एग्जेम्पशन में फॉल करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल हो जाएगा और उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आ जाएगी। मैंने काफी सारे केसेस में ऐसा देखा कि ज्यादातर क्लाइंट्स इस चीज को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। सो मेरा स्पेसिफिक एम्फेसिस है कि हमें इस चीज को जरूर मॉनिटर करना चाहिए कि गवर्नमेंट सर्विसेज पे कहीं आरसीएम छूट तो नहीं रहा है। RCM on services provided, services by way of renting of immovable property by government। So services supplied by the central government, state government, union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the CGST Act। अगर ऐसी सिचुएशन, अभी हमने देखा
कि स्पेसिफिक एग्जाम्पशन दिया हुआ है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रिवर्स चार्ज से कुछ सिचुएशंस में, और यहाँ पे अगर उन्होंने एंट्री दे दी है एक स्पेशल केस में कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को ये सप्लाई किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से मिल रही है तो वो भी रिवर्स चार्ज में फॉल कर जाएगी। फिर आरसीएम ऑन डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इसको मैं आप लोगों की परमिशन से इस पूरे बाकी के 5 नंबर में जो एंट्रीज हैं फॉर द टाइमिंग इसको छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये रियल एस्टेट से रिलेटेड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं। इसको हम जब बाकी सारी एंट्रीज कवर कर लेंगे उसके बाद में लास्ट में इस पे 5 मिनट लगाएंगे ताकि हमारा कुछ और छूट नहीं जाए। तो मैं ये 5 नंबर में जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं एफसीएम से रिलेटेड, ये सारी चीजें या लॉन्ग टर्म लीज से रिलेटेड, इसको एक बार स्किप कर रहा हूं और एक्सेप्शंस को भी स्किप कर रहा हूं। और मोर इंपोर्टेंट सेक्शन जो कि सर्विसेज ऑफ डायरेक्टर की हैं 6 नंबर पे, इसमें एक बार फोकस करते हैं। 5 नंबर याद रखिएगा, हम सबसे लास्ट में इसको रिवाइज करेंगे। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट। तो सिंपल है, अगर एक डायरेक्टर है वो अपनी जिस कंपनी में या जिस बॉडी कॉर्पोरेट में वो डायरेक्टर है उसको कुछ सर्विसेज दे रहा है तो वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होंगी। आई थिंक इसमें मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रिसेंट कुछ रूलिंग्स आई हैं और कुछ जजमेंट्स आए हैं उससे ये क्लियर हो गया एकदम कि इस पे बहुत बड़ा डाउट है। इवन डिपार्टमेंट के भी अलग अलग रूलिंग्स हैं। एक ऐसी एडवांस रूलिंग अभी आई जिसमें कहा गया कि इवन जो डायरेक्टर को सैलरी भी मिलती है उस पर भी रिवर्स चार्ज लगना चाहिए, जिसको बाद में बहुत सारे इवन दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट में भी क्लैरिफाई किया गया कि सैलरी जो होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के थ्रू जो पेमेंट होती है वो सप्लाई ही नहीं होती है, तो उस पे आरसीएम लगने का कोई मतलब नहीं है। बट एनीथिंग व्हिच इज पेड इन एडिशन टू और अदरवाइज देन बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन और सैलरी, जिसमें कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, उस पे रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी है। मतलब कि डायरेक्टर को अगर आप कोई भी सिटिंग फीस दे रहे हैं, कोई भी कंसल्टेंसी फीस दे रहे हैं या किसी भी और नेचर की सर्विसेज डायरेक्टर कंपनी को दे रहा है, उसके बदले में जो पेमेंट जाएगी वो आरसीएम में टैक्सेबल होगी। उस पे आपकी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को टैक्स जमा कराना मैंडेटरी है। ये बात ही हमने यहाँ नीचे की स्लाइड में लिखी हुई है। अदरवाइज एंट्री बड़ी सिंपल है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ डायरेक्टर टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी, in that case the liability of tax will be shifted to the company under reverse charge। 7 और 8 नंबर एंट्रीज ये अब थोड़ी सी लेसर इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, इनका रेलेवेंस लिमिटेड बिजनेस फेयर में है। तो यहाँ इंश्योरेंस एजेंट की अगर बात करें तो इंश्योरेंस एजेंसी से रिलेटेड सर्विसेज किसी भी ऐसी बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, अगर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें आरसीएम में टैक्स जमा कराने की लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की है। लाइकवाइज अगर रिकवरी एजेंट की बात करें तो रिकवरी एजेंट जो सर्विसेज किसी बैंकिंग कंपनी को देते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देते हैं या एनबीएफसी को देते हैं, उसके ऊपर भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। फिर इसके बाद 7 और 8 नंबर हमने कवर किया। अब आ गए हम 9 नंबर पे जो कि कॉपीराइट सर्विसेज की बात करता है। ये भी बहुत वाइडली सर्कुलेटेड नहीं है, इसका भी लिमिटेड यूज है, लेकिन जहां है वहां पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहते हैं कि कोई भी म्यूजिक कंपोजर, कोई भी फोटोग्राफर और आर्टिस्ट और ऐसा कोई भी आदमी, चाहे वो म्यूजिक कंपोजर हो, फोटोग्राफर हो, कोई और आर्टिस्ट हो या कोई लाइक नेचर का सप्लायर हो सर्विसेज का, और ये सर्विस दे रहा हो किसी म्यूजिक कंपनी को, किसी प्रोड्यूसर को या ऐसी ही किसी और एंटिटी को, by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright relating to original dramatic, musical or artistic work। तो ये सारे बेसिकली अगर आपने कोई भी राइट टू यूज ट्रांसफर किया है एज अ सर्विस प्रोवाइडर, चाहे आप म्यूजिक कंपोजर हो, आर्टिस्ट हो, फोटोग्राफर हो, और आपने किसी कंपनी जो कि म्यूजिक कंपनी है, प्रोड्यूसर है या ऐसे ही किसी बिजनेस में है, तो जो भी कॉपीराइट्स आपने दिए हैं उसके बदले में जो कंसिडरेशन आपने लिया है वो आरसीएम में टैक्सेबल होगा। इसका मतलब कि सप्लायर को टैक्स नहीं देना है, रेसिपिएंट को टैक्स देना है। सिमिलरली 9 नंबर में ही फर्दर एक एक्सटेंशन है जो बात करता है ऑथर से रिलेटेड। अभी हमने जो बात की वो म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, बट उसमें ऑथर नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर एंट्री है बट ये ऑथर्स के लिए है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑथर टू अ पब्लिशर,
located in the taxable territory. So टैक्सेबल टेरिटरी में ही लोकेटेड होना चाहिए पब्लिशर को भी, और टैक्सेबल टेरिटरी में ही लोकेटेड होना चाहिए जो म्यूजिक कंपनी है, प्रोड्यूसर है, या उसके लेवल की कोई भी और कंपनी है, उनको भी रिवर्स चार्ज में लायबल होने के लिए सेम बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटिंग टू द ओरिजिनल लिटरेरी वर्क टू अ पब्लिशर। तो अगर आप एक बुक राइटर हैं, आपने किसी पब्लिशर को अपने बुक्स के राइट दे दिए हैं, तो ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल हो सकता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है। यहाँ कहता है कि अगर ऑथर ने खुद रजिस्ट्रेशन ले रखा है और उसने एक डिक्लेरेशन भी दे रखा है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स जमा कराऊंगा, तो ही कैन डू दैट। अगर वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में भी अपने आप को बिल करा सकता है, दैट इज हिज चॉइस। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ लिंक कर लेते हैं कि रिवर्स चार्ज में आपकी सर्विसेज टैक्सेबल हैं, इसमें मैंडेटरी नेचर भी हो सकता है और इसमें ऑप्शनल नेचर भी हो सकता है। जैसे हमने जीटीए की बात की, तो जीटीए में हमने कहा कि मैंडेटरी रिवर्स चार्ज भी हो सकता है और फॉरवर्ड चार्ज भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन हर एक एंट्री में नहीं होती है। बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं जिनमें मैंडेटरीली आपको रिवर्स चार्ज ही अप्लाई होगा, आप चाहें भी तो उसको फॉरवर्ड चार्ज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ केसेस में आप चाहें तो फॉरवर्ड चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस बात का रेलेवेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंस इस बात का ये है कि फॉरवर्ड चार्ज के केस में जब भी आप टैक्स करेंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट 99% केसेस में, अनलेस कि किसी और रीजन से आपका इनपुट डिबार्ड है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी सप्लाई मैंडेटरी रिवर्स चार्ज में फॉल करती है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सर्विस टैक्स के पीरियड का एग्जांपल है। मान लीजिए पतंजलि आयुर्वेदा कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट बुक किया इंडिया टीवी पे और उन्होंने उसमें स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज ले ली। बेसिकली आपने, हम सभी देखते हैं टीवी में बहुत सारे ऐसे प्रमोशनल आइटम्स भी आते हैं जो एक स्पॉन्सरशिप कैटेगरी के आइटम्स होते हैं। एक तो नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट है, बट कुछ केसेस में वो लोग एज ए स्पॉन्सर भी, बहुत सारी बिजनेस एंटिटीज एज ए स्पॉन्सर भी अपना रोल प्ले करती हैं टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में। तो ऐसे ही केस में पतंजलि ने कुछ प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर किया इंडिया टीवी पे, और इंडिया टीवी ने फॉरवर्ड चार्ज में उसके ऊपर सर्विस टैक्स चार्ज कर लिया और पतंजलि ने वो सारा टैक्स इंक्लूडिंग द सर्विस चार्जेस इंडिया टीवी को पे कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि बहुत टाइम के बाद ये लगातार सिलसिला चलता रहा और करोड़ों रुपए की सर्विसेज इस तरह से फॉरवर्ड चार्ज में बिल होती रही। फिर एक पर्टिकुलर स्टेज पे जब इंडिया टीवी का ऑडिट हुआ तो पता चला कि ये सारी सर्विसेज जो स्पॉन्सरशिप नेचर की सर्विसेज हैं, ये तो मैंडेटरीली रिवर्स चार्ज में फॉल करती हैं, तो आपको ये रिवर्स चार्ज में बिल करनी चाहिए थी। अब एक तरीका तो ये सोचने का है कि सरकार को टैक्स तो मिल गया, आपने फॉरवर्ड चार्ज में बिल किया, पतंजलि ने आपको टैक्स की पेमेंट कर दी, तो हाउ डज इट मैटर, टैक्स तो सरकार को चला गया। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हुआ कि अगर ये सर्विसेज रिवर्स चार्ज में बिल हुई होती तो इंडिया टीवी को अपनी प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ता, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी सर्विसेज आपकी रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होती हैं उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, जबकि सामने वाले को पूरा टैक्स दोबारा जमा करना पड़ता है। मैं इसी के साथ एक और छोटा सा एग्जांपल लूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक लॉ फर्म है जो कि मैंडेटरी रिवर्स चार्ज में है, लॉ फर्म के पास कोई ऑप्शन नहीं है फॉरवर्ड चार्ज में बिल करने का। अब मान लीजिए कि एक लॉ फर्म के पास 5 लाख रुपए का एक केस आया कि आप हमें वैल्यूएशन से रिलेटेड एक गाइडेंस दीजिए और साथ में हमें एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो लॉ फर्म ने उसको 5 लाख रुपए में एंगेज कर लिया और पीछे एक सीए को हायर कर लिया कि आप हमें वैल्यूएशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दो, उसके लिए हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। तो अब टेक्निकली क्या होगा, जब सीए 2 लाख रुपए की एक इनवॉइस रेज करेगा लॉ फर्म को, तो वो अपना टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में लगाएगा, 18% के हिसाब से 36,000 रुपए का टैक्स चार्ज करेगा, तो 2,36,000 का बिल लॉ फर्म के पास गया। अब लॉ फर्म ने टोटल 5 लाख रुपए लेने हैं क्लाइंट से और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। अगर मान लीजिए लॉ फर्म ने के ऊपर रिवर्स चार्ज मैंडेटरी नहीं होता तो क्या होता है कि 5 लाख रुपए के ऊपर 90,000 की आउटपुट लायबिलिटी आती, लेकिन 36,000 रुपए का इनपुट क्रेडिट मिल जाता जो उसको सीए फर्म से बिल के थ्रू आया है।
तो जो नेट लाइबिलिटी बनती वो 90 माइनस 36,000 हो जाती। बट इस केस में क्योंकि लॉ फर्म मैंडेटरी रिवर्स चार्ज में है, तो जो 36,000 का सीएनए बिल पे टैक्स लगाया है वो उसकी कॉस्ट बन जाएगा। तो इफेक्टिवली गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाएगा? 36,000 ऑन द इनवॉइस रेज्ड बाय सीए एंड 90,000 ऑन द इनवॉइस रेज्ड बाय द लॉ फर्म टू द बिजनेस एंटिटी। तो जो टोटल टैक्स है वो 1,26,000 रुपए जाएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट के लिए रिवर्स चार्ज के प्रोविजन जो है वो बहुत ज्यादा फायदे के प्रोविजन होते हैं, खास तौर पे जहां कंपलसरी रिवर्स चार्ज का मैटर होता है। इसलिए हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि कुछ केसेस में अगर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी बन रही थी लेकिन बावजूद उसके आपने फॉरवर्ड चार्ज में बिल कर दिया तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नो, दैट्स अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन और थॉट प्रोसेस। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने रिवर्स चार्ज में पेमेंट करनी थी और आपके सप्लायर को आपने पेमेंट कर दी पूरी टैक्स की, तो यू आर नॉट डिस्चार्ज्ड फ्रॉम योर लायबिलिटी टू पे अंडर रिवर्स चार्ज। और ऐसे केसेस सर्विस टैक्स में बहुत सारे आज भी चल रहे हैं। तो चलिए मैं अपनी बात पे वापस आता हूं। एंट्री नंबर 10 जो कहती है मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई, बड़ी लिमिटेड एंट्री है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए कॉमनली यूज नहीं होती है। अगर आरबीआई ने कोई ओवरसीइंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उसके मेंबर्स या कमेटी जो भी चार्जेस आरबीआई से लेगी वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होंगे। ये एंट्री नंबर 10 है। एंट्री नंबर 11 थोड़ी सी वाइड है, इसमें बात करता है डीएसएस। अगर कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, मतलब बेसिकली एक इंडिविजुअल डीएसए अगर है और वो डीएसए सर्विसेज सप्लाई कर रहा है किसको? बाय इंडिविजुअल डीएसए टू अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म टू अ बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब एनबीएफसी को दे सकता है या किसी बैंक को दे सकता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विसेज